this lecture, we will be talking about dispersion. So far, we have talked about different measures of central tendency. हमने बात करी है कि किसी भी डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए हम कौन कौन से measures यूज कर सकते हैं, and we've talked about mean, median, mode, geometric mean, harmonic mean. Today's lecture will be based on this concept, which is the concept of dispersion. And we will understand what do we mean by dispersion, what are the different ways in which we could measure dispersion. And then we will look at a practice question to understand how we can calculate these different measures of dispersion. So firstly, सबसे पहले ये समझना important है कि dispersion का मतलब क्या होता है. So by now we know that we can analyze any data set by one representative number, which could be mean, median, mode, geometric mean or harmonic mean, but we most commonly use mean, median, mode, and hence we will be restricting our discussion to these measures of central tendency. We are also aware of these plots. हमें ये graphs भी हमने देखे हुए हैं. These are frequency distributions. Now, what exactly is the meaning of dispersion? आप इस graph में देखोगे, आपको दो graph यहाँ पे दिख रहे हैं. एक narrow graph है और एक broad graph है. And this dotted line here represents the measure of central tendency. This could be mean, median or mode, but let's just say that this is mean for now. Right? Now, statistics में dispersion को variability, scatter और spread के नाम से भी जाना जाता है. And it basically represents the extent to which a distribution is stretched or squeezed. इसका क्या मतलब है कि डिस्पर्जन एक तरीके का वेरिएंस बताता है आपको कि आपका डेटा में कितना वेरिएंस है. वेरिएंस का क्या मतलब है कि आपके डेटा में जो वैल्यूज हैं वो आपस में कितनी डिफरेंट हैं एक दूसरे से. तो अगर आपका डेटा स्क्वीज्ड है, स्क्वीज्ड around the measure of central tendency. So for now, we are taking the example of mean. If your data is squeezed around the value of mean, then आप अपने डेटा को लेस डिस्पर्स्ड बोलते हो, उसकी डिस्पर्शन वैल्यू कम होती है. लेकिन अगर आपका डेटा बहुत स्प्रेड आउट है, जैसे आप देख रहे हो इस कर्व में, अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा स्प्रेड आउट है तो आप बोलते हो कि उसका डिस्पर्शन मेजर ज्यादा है, या इट इज अ मोर डिस्पर्स्ड distribution. So this one is a less dispersed distribution because you can see that all the values here are closer. The maximum amount of values, जो concentration है data का, वो इस value के आसपास है, mean के value के आसपास है. Whereas जो more dispersed curve है, जो ये वाला curve है, उसके जो values हैं वो mean से बहुत ज़्यादा दूर है. तो हम basically अपने मीन पे भी तभी रिलाई कर सकते हैं जब हम बोलें मीन एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है पूरे डेटा सेट का, और हम उस नंबर पे तभी रिलाई कर सकते हैं जब हमारे डेटा का डिस्पर्जन कम हो. क्यों रिलाई कर सकते हैं? क्योंकि देन वी नो कि इस पूरे डेटा सेट को ये नंबर अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहा है क्योंकि मैक्सिमम डेटा वैल्यूज इस नंबर के क्लोज है. वेराज इस केस में जहां पे डिस्पर्जन ज्यादा है, उसमें रिलायंस ऑन दिस मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज लेसर. हम इस नंबर पे कम रिलाई कर सकते हैं बिकॉज यू नो कि कुछ ऐसे डेटा वैल्यूज हैं जो इस मेजर से बहुत दूर है. सो डिस्पर्जन कम होना इज बेटर फॉर डेटा एनालिसिस, एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट to be aware of this concept, and it is important कि आपको पता हो कि आपके डेटा में कितना dispersion है. Moving ahead, so if it is so important to measure the level of dispersion in your data, then what are the possible measures that we can use to calculate dispersion in your data? Now, this is the first possible method. आपको अपने डेटा का वेरिएंस निकालना है. सो दिस इज द फर्स्ट पॉसिबल मेथड विच इज रेंज. आप अपने डेटा का रेंज कैलकुलेट करो. नाउ रेंज का क्या मतलब होता है कि आपके डेटा सेट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है और जो सबसे छोटी वैल्यू है, विच इज द हाईएस्ट वैल्यू एंड द लोएस्ट वैल्यू, आप उन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो. सो सपोज आपका डेटा है और आपके डेटा में कुछ वैल्यूज हैं 1, 2, and then you have a lot of other values, and then the maximum value that you have is say 100,
राइट। तो अगर मुझे इस डेटा का रेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगी, 100 is the highest value and 1 is the lowest value. I will subtract 1 from 100 and then the range of my data will be 99, which is the measure of dispersion. So I am saying कि मेरे डेटा में dispersion 99 है, 99 units of dispersion is present in my data. Now this measure is actually not used that often because ये measure एक आपको गलत पिक्चर दिखा सकता है आपके डेटा की, क्योंकि आप डिस्पर्जन कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ दो, पूरे डेटा सेट में सिर्फ दो वैल्यूज को यूज कर रहे हो, एक सबसे बड़ी वैल्यू, एक सबसे छोटी वैल्यू, लेकिन इन दोनों वैल्यूज के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो डेटा है, आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हो. सो सपोज फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज आपके पास जो मिडिल वैल्यूज हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड टू दी, सपोज आपके पास ऐसे वैल्यूज हैं 2, 3, 4, 6, 8, again maybe 8, 10, sorry, 12 and so on, and 100 is the only extreme value that you have in your data. Now you will notice that जो आपका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है वो इतना ज्यादा डिस्पर्स्ड नहीं है. ये जो वैल्यूज हैं ये आपस में काफी क्लोज हैं एक दूसरे से, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू ऐसी है जो काफी अलग है इन वैल्यूज से, एंड इस एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से आपको डिस्पर्जन जो है अपने डेटा में बहुत ज्यादा मिल रहा है. इस एक एक्सट्रीम वैल्यू की वजह से डिस्पर्जन जो है आपको अपने डेटा में बहुत ज्यादा मिल रहा है ना. अगर आप रेंज कैलकुलेट करो और एक्चुअली में आपका डेटा ऐसा दिखता तो हो सकता है कि आपका डिस्पर्जन इन्फ्लेटेड आए, अपवर्ड बायस्ड आए, क्योंकि आप मिडिल की सारी वैल्यूज को इग्नोर कर रहे हो. सो रेंज एक मेजर हो सकता है डिस्पर्जन का, लेकिन वी डोंट यूज दिस मेजर बिकॉज ऑफ सच इश्यूज. The second possible method is of quartile deviation. Quartile deviation, आपने ये नाम पहले सुना होगा because we have already discussed quartiles. If you remember, quartiles are values जो एक distribution को 4 equal parts में divide करती हैं. So अगर मैं अपनी distribution को 4 equal parts में divide करूं, so 1, 2, 3, 4, then these numbers जो जिनकी मदद से मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ उनको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स. सो Q1, Q2 and Q3 are these three measures, and if you remember, this Q2 is nothing but median. Now अगर मुझे अपने डेटा में डिस्पर्जन निकालना है, then quartile deviation is the second measure that I can use. So what is the formula here? The formula for quartile deviation is Q3 minus Q1 divided by 2. तो इस measure को निकालने के लिए सबसे पहले मुझे Q3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. This has already been discussed by us in our previous videos. If you do not remember how to calculate Q3, you can click here and watch the lecture where we discussed how to calculate quartiles. So Q3, then you have to calculate Q1. Again, we have discussed the method जिससे हम Q1 और Q3 calculate करते हैं. And then what you do is you subtract Q1 from Q3, which and then divide this by 2. तो अब हम क्या कर रहे हैं? If you notice carefully, then this method is actually slightly similar to the method, the first method range, but यहाँ पे हम highest और lowest value को subtract नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे Q3 और Q1 value को subtract कर रहे हैं. So एक जो symmetrical distribution होती है उसमें median plus minus quartile deviation, median plus minus quartile deviation मतलब मीडियन में जब आप क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू को ऐड करो और मीडियन में से जब आप क्वार्टाइल डिविएशन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो तो जो दो नंबर्स आपको मिलेंगे उन दोनों नंबर्स के बीच में 50% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन
एग्जिस्ट करती है। सो अगर एक सिमेट्रिकल, जबकि एक असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो नंबर है ये शायद ट्रू नहीं होगा, दिस इज ओनली अप्रोक्सीमेटली ट्रू। सो क्वार्टाइल डिविएशन की मदद से आपको पता तो लगेगा कि आपके डेटा में कितना डिस्पर्जन है, एंड डेफिनेटली जितना ज्यादा ये नंबर होगा उतना ज्यादा डिस्पर्जन एक्सिस्ट करेगा आपके डिस्ट्रीब्यूशन में। बट अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेरी एक्यूरेट मेजर, बिकॉज अगेन यू आर इग्नोरिंग कि Q1 और Q2 के बीच की डिस्ट्रीब्यूशन डेटा कैसा दिखता है और Q2 और Q3 के बीच का डेटा कैसे दिखता है। यू आर इग्नोरिंग दीज वैल्यूज, यू आर ओनली कंसिडरिंग Q3 एंड Q1, and again this is not the most accurate or the most appropriate measure to calculate dispersion. But how do you calculate quartile deviation? This is an example. So you calculate Q3, अगेन हमने ये वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई हैं, हमने Q3 Q1 की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करा, डिवाइड बाय 2 करा, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द क्वार्टाइल डिविएशन। Alright, so if range and quartile deviation are not the most appropriate measures to calculate dispersion, then what exactly should be the ideal method? एक जो आइडियल मेथड होगा डिस्पर्शन को कैलकुलेट करने का, वो मेथड ऐसा होगा जिसमें हम डेटा में सारी वैल्यूज को कंसिडर करें और उन सारी वैल्यूज का डिविएशन कैलकुलेट करें फ्रॉम देयर सेंट्रल वैल्यू और दी सेंट्रल मेजर ऑफ टेंडेंसी। हमने देखा कि रेंज में हम हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू को लेते हैं एंड वी आर इग्नोरिंग हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में जितना भी डेटा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। सिमिलरली क्वार्टाइल डिविएशन में हम Q3 और Q1 को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन Q3 और Q1 के बीच में जितना भी डेटा है हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो एक आइडियल मेजर जो होगा डिस्पर्जन कैलकुलेट करने का, वो होगा कि हम डेटा में जितनी भी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं उन सारी वैल्यूज का डिविएशन लें फ्रॉम इट्स सेंट्रल वैल्यू विच कुड बी मीन, मीडियन, मोड, एंड देन लुक एट हाउ this is how that can be aggregated, और फिर जो नंबर आएगा उस एग्रीगेशन के बाद हम उसको एक एक्यूरेट मेजर बोल सकते हैं डिस्पर्शन का। बट देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जब हम ये करते हैं, एंड वील सी व्हाट इट इज। सो द ऑब्वियस सजेशन इज टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द डिविएशंस ऑफ ऑल आइटम्स फ्रॉम देयर मीन। इसका क्या मतलब है कि हम हर एक्स वैल्यू, सो सपोज आपके डेटा में वैल्यूज हैं 1, 2, 6, 10, 50 एंड सो ऑन। आप क्या करोगे कि पहले आप अपने डेटा सेट का एवरेज निकालोगे विच इज एक्स बार हियर, एंड देन आप हर वैल्यू से इस एक्स बार को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप ये देख रहे हो कि हर एक्स वैल्यू, हर डेटा की हर वैल्यू अपने मीन से कितनी ज्यादा दूर है, कितनी ज्यादा डिविएटेड है। ये नंबर जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा आपके डेटा में डिस्पर्शन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट वी कांट यूज दिस नंबर एज इट इज, बिकॉज व्हेन वी एग्रीगेट दिस, हम जब इस नंबर का एवरेज लेते हैं तो हमें पहले इसको सम करना पड़ेगा, which is summation x। ये जो होता है वैल्यू summation x, this is always equal to 0. This is a very important property of mean, that sum of deviations from mean is always equal to 0. So हम इसको use नहीं कर सकते। One suggestion is that हम instead of using the actual value of this x, we use the absolute value of this deviation. Absolute value का मतलब है कि हम x का मॉड ले लें। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप डिविएशन कैलकुलेट करोगे तो कुछ x वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, कुछ x वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी। जो मीन से बड़ी वैल्यूज होंगी आपके डेटा में उनका डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, जो मीन से छोटी वैल्यूज होंगी आपके डेटा में उसका डिफरेंस नेगेटिव आएगा। ये सारी चीजें अभी थोड़ी देर में क्लियर होंगी जब हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो अगर हम एज इट इज एक्चुअल वैल्यूज को कंसिडर करते हैं तो इसका सम 0 आएगा, लेकिन अगर हम मॉड वैल्यूज को कंसिडर करें, x की मॉड वैल्यूज को कंसिडर करें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम अकर नहीं करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम हर x वैल्यू का उसका एवरेज से डिविएशन लें
और उसको सम करके, उसको ऐड करके डिवाइड करें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, विच इज n. This measure is called as mean deviation, and it is also used as a measure of dispersion. But again, this measure is accurate technically, but इस measure को हम mathematically manipulate नहीं कर सकते ज्यादा, इसीलिए ये इतना commonly use नहीं किया जाता है. दूसरा इसी का एक स्लाइट मॉडिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं वेरिएंस, विच इज दिस मेजर, विच इज यूज्ड मोर कॉमनली देन दिस मेजर, जिसमें हम इंस्टेड ऑफ टेकिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मॉड वैल्यू, हम डिविएशन को स्क्वायर कर देते हैं. नाउ यू वुड नो कि जब हम किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो हमारे पास ये प्रॉब्लम अकर कर रही थी कि डिविएशंस का सम 0 आता है, और डिविएशन का सम इसलिए 0 आता है क्योंकि टोटल जो वैल्यूज माइनस में आती हैं जब आप डिविएशन लेते हो और टोटल वैल्यूज जो पॉजिटिव में आती हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं. तो हम मॉड जब लेते हैं तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं और ये वैल्यू 0 नहीं आती है. सिमिलरली जब हम स्क्वायर कर देते हैं नेगेटिव वैल्यूज को तो भी सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम आकर नहीं करती है. So the other possible solution to this issue is to square the deviation and divide that by n. This is called as variance. So we can also use the measure of variance as a measure of dispersion, and this is something that is most commonly used जब हम dispersion की बात करते हैं. So variance is the most important measure, and इसी का एक दूसरा जो measure हम use करते हैं जिसको हम बोलते हैं standard deviation, वो होता है ये, जहां पे हम summation x square divided by n minus 1. Notice that हम denominator में n minus 1 ले रहे हैं. यहाँ पे हम इसी measure को, जो variance का measure है, उसका अंडर रूट ले लेते हैं तो हम उसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस दोनों को ही डिस्पर्जन के मेजर के लिए बहुत कॉमनली यूज किया जाता है. दोनों का डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वेरिएंस में आपके डेटा स्क्वायर हो जाता है तो डेफिनेटली जो आपकी यूनिट होगी डेटा की, सपोज आपका डेटा है हाइट्स पे, आप किसी सेट ऑफ इंडिविजुअल की हाइट कैलकुलेट करना चाहते हो, एवरेज हाइट, तो आप जब x को स्क्वायर कर दोगे तो यूनिट भी स्क्वायर हो जाएगी. मतलब जो हाइट है वो अगर सपोज आपने सेंटीमीटर्स में मेजर करी है तो वो वेरिएंस आपको बताएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि आपने x को स्क्वायर कर दिया है. लेकिन अगर आपको एनालिसिस करनी है अपने सेम एक्चुअल यूनिट ऑफ मेजरमेंट में तो आप उस वेरिएंस का अंडर रूट कर दोगे और हेंस इसकी वैल्यू भी सेंटीमीटर में हो जाएगी. तो आपकी यूनिट जो है वो आपके डेटा की यूनिट से मैच करेगी, इसीलिए आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हो और उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन. सो स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस दोनों डिस्पर्जन के लिए यूज करे जाते हैं. स्टैंडर्ड डिविएशन की जो यूनिट होती है वो आपके डेटा की यूनिट से मैच करती है, वेरिएंस की जो यूनिट होती है वो आपके डेटा की यूनिट का स्क्वायर होता है. सो डिपेंडिंग ऑन योर पर्पस you can use either of the two measures. Okay, now let's look at an example of how to calculate variance and standard deviation. So you are given some data values. ये जो है आपको कुछ data given है, ये रेंट वैल्यूज है इसलिए आप देख रहे हो कि ये डॉलर में है. आपको इसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रेंट वैल्यूज को एक टेबल में लिख लिया है. स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ता है डेटा का, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी पड़ती है. जो हम कैसे निकालेंगे, इसको हम सम कर देंगे. टोटल करा हमने जिसकी वैल्यू आई 107 और उसको हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7. सो वी विल डिवाइड दिस सम with the total number of observations which is 7. आपको एक आंसर मिलेगा which is 15.28 or 15.3 to approximate.
दैट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज द मीन। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए पहले आपको हर x वैल्यू का अपने मीन से डिफरेंस निकालना पड़ेगा, अपने मीन से डिविएशन निकालना पड़ेगा। सो 12 minus 15.3 which is this value, 12.5 minus mean value which is this value, 14 minus 15.2 which is this value, and so on. Now you will notice here कि कुछ observations आपकी negative में आ रही है, कुछ observations positive में आ रही है। तो जो हम अभी पिछले टेक्स्ट में बात कर रहे थे कि अगर हम डिविएशन को उसके एक्चुअल वैल्यू पे रहने दें तो इसका जो सम आएगा वो 0 आएगा। आप ये करके भी देख सकते हो, जब आप इसको टोटल करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लो विच इज मॉड वैल्यू ऑफ x। जब आप मॉड वैल्यू ले लेते हो x की तो ये नेगेटिव जो है पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑल दीज नेगेटिव वैल्यूज विल गेट बिकम पॉजिटिव एंड यू कैन ऐड, ये जो नंबर आएगा इसको डिवाइड करोगे n से तो वो आपको देगा मीन डिविएशन। बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए हम x का स्क्वायर करते हैं। तो हमने ये जो वैल्यूज निकाले थे हम इनको स्क्वायर करेंगे, हमने हर इंडिविजुअल वैल्यू का स्क्वायर करा है और फिर हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया है एंड हमने इस सम को इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा जो हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल रहे हैं इसलिए हम वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर रहे हैं। सो 45.930 डिवाइडेड बाय 6 बिकॉज हम n-1 कर रहे हैं which is $2.8. So standard deviation of this data set is $2.8 and this is how you calculate standard deviation for any given data set. Suppose आपको यहाँ पे variance निकालना होता तो आप इसको स्क्वायर रूट करने की जगह आप इसको नॉर्मल सिर्फ ऐसे ही रहने देते और जो वैल्यू आती वो वेरिएंस कहलाती।